implement it and relish upon it. And also thank you for making it an interesting and enriching interaction. Thank you so much, sir. Okay, I have a few announcements. First of all, few students have heard your phone ringing, so please put your phones on silent or airplane mode. Second of all, the students who have marked their attendance here, aspects of IPR which are yet not covered, and we would like to start with Asim Gaur from BA department. And I would like to inform student participants about adhering to the timeline of 5 to 7 minutes. Please do adhere to that. 5 minutes. Good afternoon, everyone. Respected teachers, members of the group, PhD scholars, and my dear friends. I am Asim Gaur from BA department. I would be very grateful to you that I have got the opportunity to present myself on this stage. So I am starting with the introduction of intellectual property. What is intellectual property? Intellectual property refers to the creation of minds, such as ideas, images, music, composition, any artistic work. And intellectual property rights are the rights that give creators exclusive rights over the use of his creation for a specific period of time. We can broadly divide it into two parts. First main part is copyrights and industrial property. Copyright, as we all know, is the uniqueness of any artistic work, such as books, poems, music, dance, anything. Its maximum period will be 50 years, and industrial property consists of mainly two subcategories. First is trademarks and second is GI tag, geographical indication tag. Trademarks is the uniqueness, unique symbol of anything. Can anyone tell me one example of trademark here? Apple logo. And basically particular symbols which are unique and ऑडी की 4 जोड़ियां हैं ना. अच्छा ऑडी सिंबल अपने कॉलेज का ये लोगो. एंड नेक्स्ट थिंग इन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग. कोई बता सकता है कि पहला जीआई टैग इंडिया को कब मिला? कब मिला? 15 सितंबर 2004. और जो सेकंड कैटेगरी है उसमें हम रजिस्टर में बांधे, जैसे ट्रेड हो गया और ट्रेड सीक्रेट्स हो गया और इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया. इंडस्ट्रियल डिजाइन 2D 3D दोनों में हो सकता है. भाई किसी ने कोई गाड़ी बनाई, वो मैम ने बताया कि कोको कोला की बोतल, वो इंडस्ट्रियल डिजाइन है, उस पर भी किसी का वो है, मतलब कॉपीराइट है. और बाकी जो ट्रेड सीक्रेट्स होता है उसका आप लोगों को शायद पता होगा वैसे तो, लेकिन कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे ट्रेड सीक्रेट का? मैगी मसाला. हाउ? Because the recipe is not provided to everyone. कि कोई अपनी रेसिपी शेयर नहीं करना चाहता तो वो भी कॉपीराइट इशू है, उसको ट्रेड सीक्रेट कहते हैं. जैसे कोको कोला है, उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है. कोको कोला की रेसिपी आज तक नहीं बना सकती. बाकी फिर थैंक यू. Now I would like to call Varsha from Law Department. Good afternoon, degrees present on the dais, respected professors, PhD scholars, seniors, my respected seniors, juniors, and my fellow mates. Myself, Varsha Jiman. I am here present to my views on trademark, protection of consumer and traders' rights. बेसिकली हम बात करेंगे, इंडिया हमारे पास एक लेजिस्लेशन है ट्रेडमार्क एक्ट 1999. उसके अंडर हम बात करेंगे ट्रेडमार्क जो जिसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के क्लॉज जेड बी में, जहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली ट्रेडमार्क होता क्या है. ट्रेडमार्क इज अ साइन ऑफ ट्रेड. बेसिकली एक नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, साइन हो सकता है. तो ये इसके और इसमें जो सेक्शन 18 में इसमें ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन की बात की गई है कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा. और सेक्शन 25 में बताया गया है कि ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन हो 10 साल के लिए वैलिड होगा, उसके बाद इसका रिन्यूअल होगा. अगर हम इंट्रोडक्शन अब हम बात करें ट्रेडमार्क बेसिकली है क्या. ट्रेडमार्क बेसिकली एक सिंबल होता है जो कि ये ट्रेड को डिफाइन करता है, क्योंकि हर जगह हर ट्रेड का नाम लिखना पॉसिबल है. तो बेसिकली सिंबल से हम डिफाइन करते हैं कि ये इसका ट्रेडमार्क है. एग्जांपल के लिए एप्पल सबसे बड़ा एग्जांपल है. एप्पल
आईफोन का नाम कभी नहीं लिखता, वो सिर्फ अपने फोन पे एप्पल का लोगो देता है। उसी से हर गांव हो, उनको पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, वो सब समझ आता है कि एप्पल आईफोन। उसमें नाइकी, पूमा एंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो कि ट्रेडमार्क को डिफाइन करते हैं। अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें तो इसका मोटिव क्या था? ट्रेडमार्क का मोटिव था ट्रेडर और कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना, ट्रेडर को प्रमोट करना है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, मार्केट को बढ़ाए, कि कंपटीशन मार्केट ग्लोबल लेवल पे मार्केट को बढ़ाए, क्योंकि जब तक उसके राइट प्रोटेक्ट नहीं होंगे ना तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। तो ट्रेडमार्क का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेडर और कंज्यूमर के राइट प्रोटेक्ट करना। अगर हम बात करेंगे ट्रेडर जो कि ओनर ऑफ द ट्रेड होता है, उसके राइट होते हैं। ट्रेडर के पास एक्सक्लूसिव राइट है। सबसे पहला राइट होता है इंजंक्शन, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट उसके पास एक राइट होता है कि उसका ट्रेडमार्क कोई भी यूज ना करे, क्योंकि वो उसका है, उसकी गुडविल उससे कनेक्ट होगी। अगर कोई उसका ट्रेडमार्क यूज करेगा तो उसकी विल जो ऑथेंटिसिटी है वो कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होगी। और उसके बाद अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसके बाद डैमेजेस क्लेम करने का राइट है, वो उसके अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम कर सकता है जो कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है, डैमेजेस उसको मिलेंगे भी, पासिंग ऑन का राइट है उसके पास। ट्रेडर के बाद ये सारे राइट हैं। अल्टीमेटली जो अब हम बात करते हैं कंज्यूमर ऑफ द किंग ऑफ द मार्केट, जैसे कि हम सब हैं, हम सब किंग हैं अब मार्केट के। अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो ना कोई ट्रेडर होगा, ना ही कोई मार्केट होगी। तो कंज्यूमर के पास एन नंबर ऑफ राइट, जिसमें कि है राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी यूज, फ्री चूज, सेफ्टी है। उसमें सबसे बेसिकली जो लॉ का फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है उसमें जो है राइट टू सीक रेमेडी। अगर कोई ट्रेडर या कोई ट्रेडमार्क ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाता है जो कि कंज्यूमर के राइट को इन्फ्रिंज करता है, क्योंकि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, कोई भी राइट विदाउट रेमेडी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कंज्यूमर कोर्ट की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरह डिफाइन है कि अपने एक्ट को, अपने जो राइट है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वहां पे जाके वो रेमेडी सीक कर सकता है अपने जो भी उसको इन्फ्रिंजमेंट, जो भी उसको नुकसान हुआ है उसके लिए। इस टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करते हुए बात करें कि ये जो टाइम है ना, ग्लोबलाइजेशन का डिजिटल एरा है, इसमें हम देखें कि आपको फ्रॉड के केसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे, जहां तक कि ट्रेडर पूरी सेफ्टी रखते हैं, पूरी एहतियात बरतते हैं। पर अल्टीमेट वो टाइम है कि सिर्फ ट्रेडर को ही नहीं, कंज्यूमर को भी ये ध्यान देना होगा, उसकी भी ड्यूटी है। केवेट एम्पर एक लॉ में सेंटेंस है, उसका बोल होता है कि बायर बी वेयर, कि बायर को भी बेवेयर होना होगा, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा ट्रेडर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके चले कि ट्रेडर का राइट है वो हमें अच्छी चीज देगा। आपको भी तो राइट बनता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, पूरी जानकारी हम नहीं पढ़ते, हम ऑर्डर करते हैं, उसके बाद हम बाद में वो करते हैं कि नहीं आपको प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो इसमें आपकी भी ड्यूटी है कि आप उसको पूरा पढ़ें, सबको जानकारी लें और पूरा, क्योंकि राइट विदाउट ड्यूटी नथिंग। आपका राइट है तो आपकी ड्यूटी भी है कि अगर आप अपना राइट लें तो अपनी ड्यूटी भी तो परफॉर्म करें। थैंक यू। Now I would like to call Isha Kothari from B.Ed. Good afternoon, everyone. Respected directors, guests, teachers, and my dear friends. Today, we are gathering here IPR topic. Myself, Isha Kothari, and I am a student of B.Ed department. Today, my topic is on copyright. Copyright is an exclusive legal right which protect original work of authorship that are fixed in a tangible form of expression. Now I would like to call Ram from B.Ed department. कॉपीराइट की बात करें तो 1847 से ये मामला चल रहा है। 1847 से जब पहली बार यानी कि जो कॉपीराइट का मामला वहाँ दायर था, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे उसमें जो बार बार संशोधन होते होते जब लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे बख्श चंद थे, उन्होंने इस पर कानून बना 1950 में, फिर जाकर इसको संशोधन किया, फिर धीरे धीरे संशोधन होकर 1957 में ये कानून बन गया। कॉपीराइट में क्या होता है कि जैसे उसमें आपका अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का संरक्षण मिलता है, न कि विचार का। आप विचार में कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का संरक्षण, जैसे आप मैंने कोई किताब लिखी, चाहे और भी लोग किताब लिखते हैं, साइंस का या ज्योग्राफी का, जैसे कि आप रश्मिकांत बुक पॉलिटी का बहुत अच्छा पॉपुलर बुक है, डी.डी. बसु साहब का बुक है। कंटेंट तो लगभग सेम होता है, लेकिन विचार का जो होता है मतलब उसमें कंटेंट सेम होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट रहता है कॉपीराइट में। अब कॉपीराइट की बात करें, जैसे कि हम कोई किताब लिखते हैं, चाहे कोई किताब लिखते हैं, तो जैसे प्रकाशन कोई बुक लिखते हैं तो उसको 60 वर्ष तक
60 वर्ष तक उसको यानी कि मृत्यु से पहले अगर कोई चीज प्रकाशन होता है किताब तो 60 वर्ष तक उसको आपको संरक्षण दिया जाता है। अब कोई प्रकाशन कोई ऑथर जैसे कोई इंस्टीट्यूट उसको प्रकाशन करता है तो इंस्टीट्यूट जब प्रकाशन कर उससे फिर 60 वर्ष तक रहता है, इसमें चीज का रहता है। और उसके बाद आप करें बात तो पेटेंट की बात करें तो जैसे सर ने बताया कि जॉर्ज अल्फ्रेड जो सिविल इंजीनियर थे जो उन्होंने पहली बार पेटेंट की बात किए थे 1856 में। उसके बाद संशोधन होते होते 1957 तक ये पेटेंट के लिए आए जिसमें काफ़ी संशोधन किए। फिर उसके बाद आप जैसे ट्रेडमार्क की बात करें, ट्रेडमार्क में बहुत सारे लोगो आए जैसे गूगल का लोगो है, यूट्यूब का लोगो है, सबका लोगो अपना अपना आया। फिर उसके बाद जब बायोडाइवर्सिटी की बात करें 2002 में लाया गया। बायोडाइवर्सिटी की बात करें उसमें तो जैसे पहले क्या था कि कुछ मेडिसिनल प्लांट हमारे उत्तराखंड में केरल में मिलते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट लोग यूज कर अपना फायदा उठा लेते हैं, लेकिन बाकी जैसे कंट्री जहाँ वहाँ वहाँ उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा। उसको 2002 में उसको प्लांटर को पेटेंट किया गया कि नहीं आप जो भी यूज करें बाकी में भी उसका डिस्ट्रीब्यूट करें और उसका फायदा सभी को मिले। To express his views on geographical indication and its relevance. On the DICE faculty members of the DICE, respected faculty members of the DICE, research scholars, my fellow mates from Department of Law and other departments of the campus. I, Sapreet Singh Rawat, have the opportunity to speak on the most awaited topic of the day, the geographical indication. But unfortunately, due to the time foundation, I will take on only the registration process of the GI tag, and if the time allows, then I will discuss some significance of the GI tag. So sir, as already most of the things are already covered on the GI tag, so I don't think that introduction is required of the GI tag. But two important things about the GI tag. Firstly, what the GI tag reflects. So sir, the GI tag reflects two things. Firstly, it is a sign used on the product and it shows firstly the origin of the place. For instance, that the place from where that product has origin. Secondly, it shows the quality and the geographical conditions of that area from which it has origin. Now the next thing is that how GI tag is different from the other intellectual property rights. So other intellectual property rights, if we say, then the other intellectual property rights are conferred to a private person, but GI tag is the alone intellectual property right among the pool of the intellectual property rights we have and we are going to discuss, which is conferred to a locality or a geographical area or a group of persons. So it is not conferred upon an individual. Now coming to the registration process of the GI tag. So the registration process of the GI tag is regulated by the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. Now the subject matter of the geographical indications means that in what items the geographical indication tag is conferred. So the subject matter of the geographical indication are firstly the agricultural goods, second the natural goods, and third is the manufactured goods. So if giving you one example of all these, so Kangra tea of Himachal Pradesh, sir, this has the European GI tag also. So Kangra tea of Himachal Pradesh is an example of agricultural goods. Second is the Makrana marble of Rajasthan. This is an example of natural goods. And let me tell you that our Taj Mahal is constructed of this Makrana marble. Third is Mysore Sandal Agarbatti of Karnataka. This is an example of manufactured goods. Now the process of the GI tag registration begins with the filing of the application. The filing of the application is to be made in accordance with the section 11 of the Act, and it begins with the filing of application.
Now, who can file the application? So, sir, the application can be filed by a group of persons or formed under the law. Now, where this application is to be filed, this application is to be made to the registrar of the geographical indication of the locality which is seeking the GI tag. And one more interesting thing which I would like to discuss is that GI tag can be conferred upon the international goods also. So the next step in this is the advertisement of application. The registrar has the duty to make an advertisement of the application. Then third is the opposition. If anyone is having any kind of objections with regard to the registration of the GI tag, then same can be made within 3 months. Then next is the registration. If the registrar is satisfied after hearing the objection that the application is in order and the GI tag is to be conferred, then he will issue a certificate to that effect under the seal of the office of the registrar of GI tag. Then the withdrawal of registration. If the registrar is of the opinion that the GI tag was not to be conferred, then he may withdraw the registration of GI after giving an opportunity of hearing. And last is the duration. Then the duration of the GI tag is for 10 years, and after every 10 years you have to renew that GI tag. So with this I thanks for the Now I would like to call Vijay from a research scholar from law department. बोलने का अवसर प्रदान किया, उनको भी बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रोफेसर डायरेक्टर साहब, आदरणीय प्रोफेसर के पांडे सर, चीफ गेस्ट और यहाँ पर उपस्थित समस्त अध्यापक आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर मेरे सीनियर रिसर्च स्कॉलर आपको भी स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ। और मेरे यहाँ पर छोटे बड़े भाई बहनों, आपको भी स्वागत, आभार, अभिनंदन। मेरा टॉपिक है, मैं इस पर चर्चा करूँगा पेटेंट पर, दवाइयों पर। पेटेंट क्या है? सबसे पहले पेटेंट जो है एक लैटिन मतलब जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द से बना हुआ है। पेटेंट एक हिंदी वर्ड है, एकस। पेटेंट का हिंदी में एकस बोलते हैं। और पेटेंट जो है ये दवाइयों में 2005 से पेटेंट इतना तेजी से बढ़ता हुआ ग्रोथ हुआ है। अब पेटेंट क्या है कि दवाइयों में एक जेनरिक दवा और जो पेटेंटेड दवा, जो जेनरिक दवा और पेटेंटेड दवा है उसमें ये देखना है कि जो जेनरिक दवा है वो इथिकल होती है और जो पेटेंटेड दवा होती है वो ब्रांडेड होती है। कॉल करते हैं बाद में। अब पेटेंटेड दवा और ब्रांडेड दवा में हमको पहचान कैसे करना है? वो जो पेटेंटेड दवा होती है तो उसका एक लोगो होता है, सर्किल के अंदर जो है आर बना हुआ होता है। Okay, next I would like to call Shweta Chauhan from B.Ed. सम्मानित सम्मानित अध्यापक एवं अध्यापिकाएं एवं बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं श्वेता चौहान आपके सामने बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे कि बौद्धिक संपदा जो संगठन है उसकी जो स्थापना हुई है वो 26 अप्रैल 1967 को हुई है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है और 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि 1997 में उसे अधिनियम में लागू किया गया था और उस पर जो उद्देश्य था कि जो सामान्य नागरिकता के रूप में उसमें रचनात्मक नैतिकता में उसे भविष्य के लिए उसे आगे बढ़ाया जाए और जो उसका अधिकार था कि जो बौद्धिक संपदा जो संगठन का जो उसका अधिकार था वो था कि 1957 में कॉपीराइट पैटेंट जो रिगार्डिंग था उसमें बौद्धिक Now I would like
like to call Aman from LLM. मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, रिसर्च स्कॉलर एवं प्रबुद्ध श्रोतागण, बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी बुद्धिजीवियों के बीच में बौद्धिक संपदा के ऊपर चर्चा की जा रही है। देखिए, समय की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन समय में थोड़ा ज्यादा चाहूंगा क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है। वंस एल्विन टॉफलर ने कहा था कि द इलिटरेट ऑफ 21st century are not those who can't read and write, they are those who can't learn, unlearn और relearn। ये जो प्रोसेस है अनलर्न, रीलर्न और लर्निंग, ये हमें न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन, नए साइंटिफिक आउटकम्स को जन्म देती है। और ये न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन और आउटकम्स को कोई फायदा नहीं है अगर हम उस प्रोसेस को प्रोटेक्ट ना कर पाए जो ये प्रोसेस लर्निंग की रिजल्ट है। न सिर्फ हमें इस लर्निंग की प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना है, हमें इस आउटकम को भी प्रोटेक्ट करना है जो साइंटिफिक इनोवेशन से निकल के आता है। यही मेरा आज का विषय है कि हम कैसे आईपीआर और साइंस को आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं और कैसे आईपीआर और साइंस इस राष्ट्र की ग्रोथ में मदद करते हैं। देखिए, दुनिया चुनौतियों से भरी हुई है। We live in a world where there are so many challenges. We cannot able to protect our children. We cannot feed them if we will not find smarter or cheaper way to feed them। और ऐसे सामान को बनाने के हम आसान और सस्ते तरीके ना ढूंढे जिससे मार्केट में ला सके, जिससे हम उनको वो बेहतर कल दे पाए जिसकी कल की कल्पना हमने या हमारे पूर्वजों ने की थी। इसका सिर्फ एकमात्र तरीका है साइंटिफिक इनोवेशंस, टेक्निकल एडवांसमेंट। न्यू साइंटिफिक इनोवेशन और टेक्निकल एडवांसमेंट उन चीजों को जन्म देती है जो दुनिया भर की चीजों को आसान कर देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सबके पास फोन है। कोई आईफोन चला रहा, कोई सैमसंग की फोन चला रहा, कोई हमारी दूसरी कंपनी की फोन चला रहा। फोन आज की जरूरत में सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं बन गया है। फोन के जरिए हम कनेक्ट होते हैं, हम नई चीजों को ढूंढते हैं, हम सर्च करते हैं, वी लर्न। और आप देखेंगे हर फोन एक दूसरे फोन से अलग है। इसके पीछे सिर्फ एक सिंपल सा रीजन है, द प्रोटेक्शन, जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इन फोन्स को देते हैं। हर कंपनी के पास उसका डिजाइन का प्रोटेक्शन है। लाइक हिमानी में हम डिस्कस किया एप्पल वर्सेस सैमसंग का केस। एप्पल के डिजाइन को चोरी किया गया सैमसंग के, वो नहीं कर सकते। एप्पल अपने यूनिक डिजाइन के लिए अवेयर है। आप जानते हैं एप्पल के फोन में जो स्क्रीन लगती है वो भी सैमसंग बनाता है। एप्पल क्यों नहीं बना सकता? $1 बिलियन की कंपनी, $1 ट्रिलियन की कंपनी, क्योंकि उसकी स्क्रीन को प्रोटेक्शन दी गई है। इवन नॉट ओनली द फोन्स, इसके अंदर जो चिप्स लगी हैं, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट का डिजाइन, सब चीज प्रोटेक्टेड है। ये कैमरा प्रोटेक्शन है, ये प्रोजेक्ट इसके अंदर जो डिजाइन है ये प्रोटेक्शन है। हर चीज, हर टेक्निकल एडवांसमेंट उसको प्रोटेक्शन दी जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ये प्रोटेक्शन प्रमोट करती है, मोटिवेट करती है न्यू इन्वेंशंस को जन्म देती है। क्योंकि आप जस्ट एक आम आदमी के रूप में सोचिए, हम जिंदगी भर की अपनी मेहनत किसी चीज के पीछे लगाते हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्यों करें उसको? इन्वेस्टर्स किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं मनी, उसके बदले में अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट करें। सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड-19 वैक्सीन। दुनिया भर ने इस महामारी को देखा। कोविड-19 के में हमने इस चीज की जरूरत महसूस की कि ऐसी कोई मेडिसिन होनी चाहिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। दुनिया भर की फार्मा कंपनी से $1 बिलियन खर्च किए। सिर्फ एक ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव तो था ही था, लेकिन एक मॉनेटरी पर्सपेक्टिव भी था। कोई भी कंपनी इतना पैसा क्यों लगाए, बदले में कुछ ले। तो ये मोटिवेट करता है हर चीज को, हर कंपनी को, हर किसी ना इंडिविजुअल को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कि आप नए इन्वेंशन को जन्म दें। आप सब ने शार्क टैंक का भी कुछ हमारे पिछले कुछ दिनों में एक शो चलता है शार्क टैंक, आप सबने देखा होगा मोस्टली। तो उसमें एक जुगाड़ू कमलेश नाम का व्यक्ति आया, पीयूष गोयल जी ने जिसकी मर्जी, उनकी एक इनोवेशन थी फार्मर्स को लेकर। आप जानते हैं उस इन्वेंशन पर भी पेटेंट मिला है। हर चीज जो हम न्यू डिस्कवर करते हैं सोसाइटी को नया देने काम करता है साइंटिफिक टेम्परामेंट के जरिए। हमें थोड़ा समय कि उस टेम्परामेंट के जरिए हम प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। न सिर्फ शार्क टैंक, इवन आप देखेंगे हम इसरो पेसर भी रॉकेट का यूज करते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। हमारे पास ही सिर्फ ऐसा सस्ता और हल्का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है। वो दुनिया भर में बड़ी एडवांसमेंट कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रशिया, क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आईपीआर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है।
कि जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की उसको ट्रांसफर करें, लेकिन राइट्स हमारे पास हम उसको ट्रांसफर कर भी सकते हैं नहीं। अब क्योंकि समय की पाबंदी है तो ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए साइंटिफिक आइडिया हमेशा मैटर करता है। आप IPR ड्यू टू वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। व्हाट मैटर इज अ साइंटिफिक आइडिया, वन रिवोल्यूशनरी आइडिया, वन ब्रिलियंट इन्वेंशन कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड। एग्जांपल ChatGPT, एक सैम ऑल्टमैन के दिमाग में आया हुआ आइडिया ने दुनिया भर की सोचने के नजरिए को बदल दिया। आज हम सब उस ChatGPT का टूल का यूज करते हैं, हम सब अपनी लर्निंग की प्रोसेस में उसका यूज करते हैं। तो एक साइंटिफिक इन्वेंशन किस हद तक दुनिया को बदल सकती है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। और वो इन्वेंशन को अगर हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो ऐसे इन्वेंशन बाद होनी बंद हो जाएगी। हमें नीड क्यों मैसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, बिकॉज वी नीड टू गिव सच प्रोटेक्शन सो दैट दे विल फील मोटिवेटेड, ताकि वैसे इन्वेंशन फ्यूचर में करते रहें। तो आज हम इंडिया में बैठे बैठे उन मैसेजिंग ऐप का यूज करते हैं जो US में डेवलप किए गए। आज US वाले वो गेम्स को प्ले करते हैं जो वियतनाम में डेवलप किए गए। अब सिर्फ साइंटिफिक टेम्परामेंट या IPR बड़े शहर तक सीमित नहीं, छोटे छोटे गाँवों में भी न्यू इन्वेंशन हो रही है, छोटे छोटे कस्बों में न्यू इन्वेंशन हो रही है, बिकॉज प्रोटेक्शन उनको मिल रही है। क्योंकि जो इन्वेंटर है, जो इसे साइंटिस्ट उस चीज को डिस्कवर करता है, उसके मन में ये संतुष्टि है कि जो भी मैं डिस्कवर करता हूँ उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, इसलिए वो न्यू इन्वेंशन को प्रमोट करते हैं। सिर्फ न्यू इन्वेंशन या साइंटिफिक टेम्परामेंट या न्यू इन्वेस्टिगेशन जिनको हम IPR देते हैं, वो सिर्फ किसी नेशन का डेवलपमेंट नहीं करती, वो पूरी ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट है। जब चंद्रयान 3 मून पर लैंड हुआ तो सिर्फ चंद्रयान 3 मून पर लैंड नहीं हुआ, एज आवर प्राइम मिनिस्टर सेज, इट्स इंडिया ऑन लैंडेड हुआ, इट्स एंटायर ह्यूमैनिटी, इट्स एंटायर ह्यूमन रेस व्हिच लैंडेड ऑन। It's because of the IPR protection and the scientific temperament which we have. Thank you so much. Now I would like to call Ram Krishna from the Ed department. वागर्था विवशं पृक्तौ प्रागर्था प्रतिपत्तये जगतः पीतरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मंचासीन परिसर के निदेशक गुरुवर AA बौरी सर, विधि के विभागाध्यक्ष सह संकायाध्यक्ष गुरुवर AK पांडे सर एवं मंच पर विराजमान अतिथि द्वय एवं विधि के निष्णात विद्वान जो मंच पर उपस्थित हैं एवं मेरे प्रिय बंधु बांधव, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के विषय में हम सभी विस्तार पूर्वक जानते हैं और इसके विषय में धारा 2 और धारा 13 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हमें यह भी पता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 के तहत इसकी वाद को स्थापित नहीं किया जा। इसकी वाद की स्थापना सत्र न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय दोनों जगह की जा सकती है। यही नहीं, इसमें अनेकानेक प्रकार के उपचार भी हमें मिले हैं। यूपी जस्ट EV जस्ट रिमेडियम जिसे हम कहते हैं, जहां अधिकार है वहां उपचार उपलब्ध है। आज के संदर्भ में, अधुनातन संदर्भ में देखा जाए तो हमें शोध के विषय में कहने के लिए विशेष रूप से अवसर प्राप्त हुआ है कि शोध में किस प्रकार से कॉपीराइट को हम ले रहे हैं। हमारे हाथ में एक झुझुना मिल गया है जिसे बच्चों को हम देते हैं बहलाने फुसलाने के लिए, और यहाँ पर सभी प्रकार के विषय वस्तु हमें मिल जाते हैं और यहाँ से हम लेते हैं और सीधे कॉपी पेस्ट मार देते हैं और वह कॉपी पेस्ट CD बनकर UGC में जाती है। UGC एक मशीन बनाकर रखी है जहाँ पर उसको डाला जाता है और वहां से हमें पता चलता है कि 10% कॉपी हुआ है PhD का या 30% हुआ है। उसके बाद हमें जो है उपाधि प्रदान की जाती है। अगर 30% होता है तो हम मान्य नहीं होता है, वह कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाता है। और यह सभी जो कृत्य हो रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, वह है समय की कमी। ऐसा नहीं है कि हमें 48 घंटा मिलता है और आपको 24 घंटा मिल रहा है, दोनों को बराबर समय मिल रहा है। किंतु हम क्या करते हैं, अपने 25 वसंत को जीने के बाद इस मंच पर आते हैं और एक बहुत ही बहुमूल्य पात्रता परीक्षा पास करने के बाद हमें PhD में नामांकन मिल जाता है।
6 महीने कोर्स वर्क करने के बाद हम निष्णात विद्वान समझने लगते हैं अपने आप को। किंतु मैं एक ऐसे शोधार्थी के विषय में आपको बताना चाहूँगा जिन्होंने अपने 80 वर्ष की अवस्था में रिसर्च करना शुरू की, वह है गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने श्री रामचरितमानस का प्रणयन अपने उम्र के 80वें वर्ष में किया था और उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा ये कॉपीराइट है, मेरा ये अधिकार है। उन्होंने कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मदम यद, यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह रामचरितमानस को सबसे पहले रचकर भगवान शंकर ने अपने मन में रखा था। रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवा संभाला। तो आज हमारे यहाँ क्या है कि संपदा बहुत ही विस्तृत है, मगर हम क्या करते हैं कि उस संपदा को संकीर्णता के रूप में लेते हैं। जैसा कि विधि विदुषी गुरु माता द्वय ने बताया कि कोको कोला की जो बोतल है और जो फैंटा का बोतल है, जो जैव विविधता के विषय में इन्होंने बताई, तो ऐसा नहीं है कि यह जो इन लोगों ने बताया ये हम नहीं जानते हैं, किंतु जो इन्होंने अपना एक विशेष बौद्धिक के माध्यम से यहाँ पर चीजों को प्रस्तुत किया, उसे हम प्रणम्य करते हैं। ऐसा है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अंतर्गत हमारे देश में किसी भी प्रकार का प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम तो उस पराशर स्मृति नारद स्मृति के देश में जन्म लिए हैं जहाँ पर वेद और पुराण हैं, जहाँ पर साम वेद में सारी संगीत संकलित हैं, किंतु हमें वहाँ से किसी चीज को लेने की लालसा नहीं होती है। हम बस YouTube पे चले जाते हैं, YouTube के माध्यम से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। YouTube की ज्ञान, WhatsApp यूनिवर्सिटी की ज्ञान से हम अपने आप को अभिहित कर रहे हैं, किंतु हमारी मौलिकता कहाँ गई? हम तो उस सनातन संस्कृति के पुरोधा हैं जहाँ पर लोग सृष्टा हुआ करते थे, सृजन करते थे, और आज हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। इसने कहा था, बेंथम ने एक जगह कहा कि जहां पर विधि है वहां पर संपत्ति है, जहां पर विधि नहीं है वहां पर संपत्ति नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक लोक कल्याणकारी राज्य हमें पलना से लेकर मृत्यु सैया तक, डेथ सर्टिफिकेट तक हमें संरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु उस सुरक्षा के अंतर्गत हम क्या करते हैं? अपने अंदर जो सृजनात्मक क्षमता है उसका हम विनाश कर देते हैं। हमें जो सृजनात्मक क्षमता का उन्नयन करना है उसे हम खत्म कर रहे हैं। हमें एक शीर्षक मिलती है पीएचडी टॉपिक पर, उसी शीर्षक के विषय में हम सोचते हैं, उससे इतर सोच ही नहीं पाते हैं। कतिपय ऐसे भी शोधार्थी हैं जिनका शोध प्रबंध प्रकाशित नहीं हो पाता है, उनके शोध प्रबंध का हम पूर्णतः रूप से कॉपी पेस्ट करके अपने आप को महिमा मंडित करके और यूजीसी के रूल के अंतर्गत जो 10 पॉइंट मिलता है डॉक्टरेट लगने के बाद, विद्या भारती की उपाधि मिलने के बाद, हम उसे अलंकृत होकर आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उस आजीविका से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। स्वांतः सुखाय कुछ कार्य को करना चाहिए। हमारे अंदर स्वांतः सुख है नहीं, हम जो है शुद्ध वित्त लोक ईषणा में जी रहे हैं। हमें जो है अपने बेटी की इच्छा है, अपने धन की इच्छा है। अरे दूसरे के विषय में तो सोचें। अयम निजः परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चेता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, जो हम कहते हैं, और हम यह भी कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो हम किसी के द्वारा जो बौद्धिक क्षमता है उसने जिस चीज को दिया, अणु परमाणु तो हर जगह उपलब्ध है, अणु परमाणु हर जगह उपलब्ध है, किंतु मैंने उसे जोड़कर कुछ बनाया तो उस पर मेरा एक अधिकार होना चाहिए। रसायन के क्षेत्र में देख लीजिए, रसायन के क्षेत्र में जो हमें हल्दीराम का भुजिया है, कुरकुरे है, और भी जो कोको कोला और अन्य जो रिफ्रेशमेंट जो प्रोवाइड की जाती है, जलपान जो मुझे मिलता है, उसमें भी हम देखें तो जो उसमें NO2 या कोई गैस डालते हैं जिससे वो बहुत ही प्रिजर्व होता है, तो उसे किसी ने बनाया और उसे किसी ने बनाया, हम उसका नाम हटाकर अपना नाम डाल दें, तो ये भी तो एक अन्याय है। और हम हर समय 302 धारा का ऑफेंस करते हैं, यह पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि जो मृत्यु के विषय में सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट रिलीवेंट और इररिलीवेंट की बात करता है, वहीं तक है। हम हर कदम पर किसी को एक मौत मार रहे हैं, हम उस मौत को मारने से रोकें। मोहम्मद साहब ने कुरान और हदीस में फरमाया है कि हमारे दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते रहते हैं, एक हमारे अच्छे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं
और एक हमारे बुरे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, और कयामत के दिन इनका हिसाब होगा। यही नहीं, सनातन संस्कृति में महाराज चित्रगुप्त को बैठाया गया है कि आपकी कर्मों की लेखा जोखा करे। तो हम उस ऑलमाइटी गॉड से क्यों नहीं डरते? हम उससे डरते हैं जो यूजीसी एक सीटी चेक करती है, हम उससे नहीं डरे। हम उससे डरें जो परम पिता परमेश्वर है, जो हमें और आपको बनाया है। हमारे अंदर जो सेल्फ रियलाइजेशन की जो भावना है, हम उससे अपने आप को गौरवान्वित और महिमा मंडित करें। और मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि झड़ गई पूछ रोमांच झड़े, पछता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन समर चुका है, मन अभी समरना बाकी है। धन्यवाद। Thank you, Ramkishan, for making it spiritual, philosophical, legal, scientific, and etc. conversation. Next, I would like to call Ajay on the stage, on the podium एवं सब आगामी उपस्थित सभी शिक्षकगण, एवं प्यारे साथियों, आप सभी मेरा प्रणाम। मेरा टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन एंड इट्स चैलेंजेस इन मॉडर्न टाइम ऑफ कॉपीराइट। इसके हम परिचय को देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि या ज्ञान से रचना करता है तो उसे बौद्धिक संपदा के रूप में जाना जाता है। और जैसे संगीत, साहित्य कला, साहित्य कृति, कला, शोध, इन संपदाओं को संरक्षित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वास्तविक रचना व्यक्तियों के प्रति प्रोत्साहित करती है और इसे अन्य व्यक्तियों को रचना करने के लिए आगे लाती है।